سر بلی تھیلے سے باہر آ گئی امریکی جو ہے وہ یہاں پر کچھ اگر نہیں بگاڑ سکتے تو وہ ایک زوم میں تھے شاید افغان، اور اب ہندوستان کی شے پر پاکستان پر جس طرح سے حملہ کیا گیا اس کا بھرپور جواب دیا ہم نے۔ یہ جواب سر ان کو تو ملا ہی ملا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان عناصر کو بھی ملا ہے جو یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی کرنے والوں سے بات چیت کریں، پاکستانیوں کو قتل کرنے والے شہید کرنے والوں سے بات چیت کریں، تو ان کو بھی بھرپور جواب ملا ہے سر۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ افغانستان کے اندر جو سیٹ اپ آیا ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے خبریں دیکھی ہیں، انہوں نے ان کی جو اکثریت ہے پاکستان مخالف رویہ اختیار کیا، اور یہاں جو ان کے سہولتکار ہیں اس کے بارے میں ہم جیسے لوگ تو بڑی دیر سے اس کرتے آ رہے ہیں کہ آئینی ہاتھوں کے ساتھ آپ چمٹیں اور انہیں بالکل موقع نہ دیں کہ وہ کسی بھی طرح کے جو سامنے جانے والے لوگ ہیں ان کی سہولتکاری کا انہیں کچھ چانس ملے۔ آج افغانستان نے جو حملہ کیا ہے کہ اس میں کوئی راز کی بات نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ 100% بھارت کے ہیں ان کے وزیر خارجہ متقی، اور اس کے بعد وہاں جا کے انتہائی قابل اعتراض مشترکہ اعلان جاری کیا ہے جس سے افغان طالبان میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر برہنہ ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ ان کی سیاسی پوزیشن اور ان کی اخلاقی پوزیشن جو گفتگو انہوں نے وہاں کی، اور اس کے بعد یہ رات کو حملہ کیا گیا ہے، یہ سب کچھ بھارت کے پہ کر رہے ہیں، اور ان کی یہ جو اہم کرنا سوچ ہے کہ یہ پاکستانی فورسز کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا خدا نہ خاصہ بڑا نقصان کر لیں گے، ہماری طرف سے ابھی تو اتنا جواب دیا ہے جتنا درکار تھا، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جواب زیادہ جائے گا اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹ یہ جو ایک ظالمانہ نظام مسلط ہو گیا ہے، اور جو پھر فطرت اور ہندوستان کی صورت میں یہ تو ایک ہندوستان کا پروینس بن گیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے، یعنی کہ انڈیا کے اشارے پر اس نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اتنی دیر ہم نے ان کو پالا، ہم نے ان کو راہداری دیتے ہیں، اتنے لوگ یہاں ان کی عزت کرتے رہے، ہم نے بھائی چارے کے نام پر اتنے یہاں قتل و غارت ہمارے یہاں ہوئی، پوری کی پوری نسلیں تباہ ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارت کے کہنے پر ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی فورسز اس کا بہت ڈیپ جا کے جواب دیں گی پورے ملک کے اندر۔ ان کے تمام جو صوبے ہیں، ہیلمٹ تک میں اطلاعات ہیں کہ اٹیک ہو رہے ہیں، کابل میں، قندھار کے اندر بھی ڈرون جانے کے اطلاعات ہیں، تو یہ ظاہر ہے پاکستانی فورسز نے اس حوالے سے الحمدللہ مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ ہماری ایئر فورس بھی الرٹ ہے، ہماری بری فوج بھی الرٹ ہے، اور ان کے جو سہولتکار ہیں، جو مذاکرات کرنے والے لوگ تھے، ان کے منہ پر ایک دفعہ پھر زوردار تماچا پڑا ہے، اور انہی کے لوگوں نے مارا ہے جن کی باتیں نہیں کرتے تھے کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ سر بالکل، جس طرح افغانستان ایک برادر ہمسایہ ملک ہے، اتنے سالوں تک پاکستان نے افغانیوں کو جو ہے وہ پناہ دی ہے، ان کی خدمت کی ہے، اور پھر بھی افغانستان جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کو بڑھا رہا ہے۔ جس طرح وقار حسن صاحب نے بھی بات کی کہ کچھ ڈالرز کی خاطر جو ہے بھارت کے کہنے پر اس طرح کر رہے ہیں، تو مطلب افغانستان یہ سوچتا کیوں نہیں ہے کہ برادر ملک ہے پاکستان اس کا، اور وہ بھارت کے کہنے پر اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں؟ آخرکار کب اس دہشت گردی پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا، قابو پایا جائے گا؟ یہ جو یہاں نظام بن گیا ہے افغانستان کے اندر بدقسمتی سے، یہ کرائے کے گریلے بن گئے ہیں، ان میں کوئی غیرت کا مادہ نہیں ہے۔ بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ یہ بڑے ناصف العقیدہ مسلمان ہیں، لیکن انہیں مسلمانوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کیسے مظالم ہو رہے ہیں، اور انہوں نے آج کیا بیان دیا؟ اسرائیل کیا کچھ نہیں کرتا رہا فلسطین میں، وہاں ان کی کیا پارٹیسپیشن رہی؟ اور یہ ہے کرائے کے گریلے، جو ان کو پیسے دے کہ اس کے ساتھ مل کے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بڑے لوگوں کو چبھے گی، جب امریکہ نے ان کو یوز کرنا چاہا تو اس کے خلاف یوز ثبت ہو گئے یوز، بعد میں کچھ اور ملکوں نے امریکہ کے خلاف یوز کرنا چاہا تو اس وقت بھی یوز ہو گئے۔ تو ان کا یہ معاملہ ہے۔ اب انڈیا نے ان کو ڈالر دکھائے ہیں، پیسہ دکھایا ہے، تو یہ اس طرف چل پڑے ہیں۔ تو ان کا نہ کوئی کریکٹر ہے، نہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ یہ ایک جتھا ہے جو افغانستان پہ قابض ہوا ہے، اور وہاں کے جو ماڈریٹ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مجھے آپ بتائیں جس ریاست کا سربراہ یہ کہے کہ یہاں نیٹ نہیں چلے گا، انٹرنیٹ بند کر دے، جو خواتین کی بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کر دے، تو اس کو تو ویسے ہی میرا مطلب ہے کہ میں غلط الفاظ میں کہوں تو اس کو تو اٹھا کے کہیں قابل پھینک دینا چاہیے۔ یہ حکومت کرنے والے ایسے لوگ ہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تو اس معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو رائے اس پر اس طرح کے یہ لوگ ہیں گھٹیا۔ تو ان کو ان کی زبان کے اندر جواب دیا جائے گا، طاقت سے جواب ان کو ملے گا۔ کسان فراموش لوگ ہیں، یہ بار بار ثابت ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، کئی دفعہ ثابت ہو چکا ہے، لیکن اس دفعہ تو ہے کہ ان کو اس طرح کا جواب ملے گا، اس کے بعد یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ وقار حسن صاحب کیا آپ ساتھ موجود ہیں سر؟
جی جی अच्छा वक़ार हसन साहब, अब चूँकि पाकिस्तान की जो हैसियत है 10 मई के बाद वो बहुत बदल गई है और दुनिया जो है पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ मुल्क के तौर पर, मुख्तलिफ क़ुव्वत के तौर पर देखती है, बिलखुसूस इस खित्ते में, और भारत की वो वैल्यू अब नहीं रही है. सर, इस वाक़े के बाद पाकिस्तान चूँकि पहले भारत की जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है उसके सबूत पूरी दुनिया को दिखाता रहा है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया. अब जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ कर रहा है उस पर आप क्या समझते हैं, आलमी रिएक्शन क्या आएगा? आई थिंक आदमी दुनिया देख रही है. बेसिकली अभी देखें, मुत्तकी साहब दिल्ली आने से पहले मॉस्को में थे और उसमें फॉर्मेट है, मॉस्को फॉर्मेट में रशिया है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सब मेंबर्स थे और उन्होंने बड़ी, सबसे से पहले भी हो चुका है, आई थिंक लास्ट में सितंबर में भी हुआ था इस साल भी. देखिए आप एक टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें, बिकॉज अल्टीमेटली देखें पीपल हैव टू सी इट. देखिए क्या खित्ता सुकून में है. ईरान जो है क्यों रिपेट्रिएट कर रहा है वहाँ को, मिलियंस ऑफ लोगों को वो भी कर रहे हैं. इस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है बिकॉज आपने पॉलिसी है. दूसरा सबसे बड़ा सवाल तालिबान को और भारत को ये पूछना चाहिए कि वहाँ लोग वापस जाना क्यों नहीं चाहते. ठीक है ना जी, हमें तो ब्लेम करते हैं कि आप भेज रहे हैं तो वही उनका मुल्क है, अमन हो गया, कहते हैं ये अफगानी तरक्की बड़ी स्ट्रॉन्ग है. सारी एक आई थिंक मिसपरसेप्शन है. टोटल इकोनॉमी आपको बता दूं कि इनकी $8-9 बिलियन की, फैसलाबाद की इकोनॉमी से जो आते हैं एक सिटी इकोनॉमी, लेकिन हमको इस पर वो बोस्ट नहीं करते. दे शुड लुक इनटू इट. अभी 80% आबादी तो हंगर को जो है वो स्टेयर कर रही है साल सर्दी में जो हालत होनी है. फिर पाकिस्तान के साथ आपने बिगाड़ दी, 25% ग्रेन यहाँ से जाता है और हम डेफिनेटली वी हैव टू डन बेटर के जो अफगान अवाम है उनका तो ख्याल आता है. आपका तकरीबन आई थिंक साल में 3 लाख अफगान तो आता सिर्फ इलाज कराने यहाँ पे, एजुकेशन के लिए आते हैं और कभी खुदा ना खासा डिस्क्रिमिनेशन नहीं. लेकिन अगर आप टेररिज्म भी साथ चलाएं और समझते हैं कि इंसिडेंट कवर डाउन, भाई ये वो नहीं है ना, हम सोवियत यूनियन है और वो भी जो बढ़ते मारते हैं. तो पाकिस्तान का एक बड़ा मेजर रोल था, पाकिस्तान ने सारा भुगता, सारा प्रेशर दिया. बहरहाल अभी जो मिलिट्री ऑपरेशन आई थिंक बड़ी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होगी मेरी नज़र में और शायद ये भी कंटिन्यू करेगा. बट मैं तो ये कहूँगा कि अभी पाकिस्तान शुड नॉट गो एंड सिक्योर बेसिस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, और ये जड़ से ख़त्म करें. उन्होंने तमाशा बनाया हुआ है. और दूसरा जो है आई थिंक बेसिस जब भी स्पोर्ट्स है, जहाँ से स्पोर्ट आती थी तो वहाँ भी हिट किया जा रहा था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी गुड बैड तालिबान. बिकॉज देखें आप तो रोजाना शोधा कि हम क्यों उठाएं यहाँ पे बॉडीज जो हैं तरीके से आवाम को किया जा रहा है. कौन सा इस्लाम मेरे ख्याल में भी जो आई थिंक फुल फ्लेजेड लड़ाई है और फ्रंट वाली जो खबरें हैं बॉर्डर के साथ साथ ऑलमोस्ट सारी पोस्टें इनकी न्यूट्रलाइज हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, अभी इलाके छोड़ के भाग गए टोटल. ये मतलब समझते हैं रैक टैग मलेशिया जो है ये खाना खासा पाकिस्तान से डेंट कर लेगी भारत के कहने पे, तो शर्म आनी चाहिए. अफगान अवाम के लिए भी एक मैसेज है कि दे शुड गेट रिड ऑफ दिस रिजीम नाउ, बिकॉज अफगान अवाम की इतनी नहीं है कि वो सत्रह तरह की 4 करोड़ अवाम है. खवातीन अंदर बंद हैं, इन्होंने बिल्कुल आई थिंक उसको किया हुआ शट डाउन. भारत के अंदर जाके एक शर्मनाक काम किया, मतलब चीन ने 10% खवातीन को नहीं बैठने दिया. तो अभी इंडिया में लान तान कर रहा है उनका मीडिया कि यार आगे इम्पोजिंग देयर आइडियोलॉजी. तो सिर्फ भारत को तो स्पेस चाहिए ना एंटी पाकिस्तान. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट सेकुलरिज्म या वुमेन राइट्स, ये सारा अपना घोषणा है और अल्लाह करेगा आई थिंक ये दोहल डॉक्ट्रिन का जो है ना जनाजा इधर से काबुल से निकलेगा. और मुझे लग रहा है कि अगर तालिबान बाज नहीं आते तो सेंट्रिंग कुड गो टू रिजीम चेंज बिकॉज अवाम को उठा के परेशान. ठीक है, अवाम जो है उनको उठाकर परे फेंकेगी. सर, आप हमारे साथ रहिए. नवीद चौधरी साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ, ये बात भारत को बहुत चुभी थी, तो क्या वो इसलिए भी अब अफगानिस्तान के साथ अपनी रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट? बिल्कुल, ये जाहिर है भारत के लिए और इसराइल के लिए बड़ी तकलीफ की बात. और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो मामला किए हैं भारत ने, उसमें ये एक बाकायदा साजिश है. रास्ते तो उनके पहले के थे और बड़े क्लोज रास्ते थे. फंडिंग हो रही है इंडिया की जानिब से भरपूर. पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान पर और हमारी सरकारी इमलाक पर, हमारे शहरों पर जो पहले हमले हो रहे थे, उसमें ये भारत की फंडिंग है. सारी लोग इनके इस्तेमाल हो रहे थे अफगान तालिबान के. तो ये टीटीपी का नाम लेना या इफ्तार फारिग कहना जो है वो भी छोटा सा हो गया. ये तो जो अफगान तालिबान है ये तो उसका सरपरस्त तो ये है, यानी कि खराबी की जड़ जो है वो ये है. तो उसकी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है. और जाहिर है कि ये एक तरह से ये सऊदी अरब पर भी हमला है इस अंदाज में कि जब पाक सऊदीया दिफाई मायदा हो चुका, मुश्तरका दिफा का जो मायदा है, उसके बाद एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा. तो उस मायदे के रूप से इस वक्त आप समझें कि सऊदी अरब पर भी उन्होंने हमला किया और ये भारत ने सारा ज़ाहिर इसका अरेंजमेंट किया है, प्लानिंग, इसकी टाइमिंग,
इस हवाले से कहाँ कहाँ अटैक होगा, वो ऑन बोर्ड है और वो ये सारी शरारत कर रहा है। कहते हैं कि दूसरे ममालिक भी सुनते अखबार मॉनिटर तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चीन इस पर खामोश बैठेगा। और ये सारी सूरत हाल जो है सबके नोटिस में आ चुकी है कि ये एक शरारत है। और पाकिस्तान का जो मौकफ है वो बड़ा उसूली रहा है बिल्कुल आगाज से, जब हमने कहा कि भाई यहाँ बॉर्डर पर फेंस लगा लेते हैं, जो मुरज्जा तरीका है और आलमगीर तरीका है। हाँ, सरहदें जो है उसको तयन करने के बाद जो तरीक़ेकार होता है एक दूसरे के मुल्क में आने जाने का, कारोबार करने का, सारे मामला को वो अब करते रहे। उन्होंने बाढ़ भी जगह जगह घाट दी, उसको फायरिंग शुरू कर दी। तो इनकी जो नीयत है वो बहुत खराबी, ये मतलब ज़हनियत खराब है, इनकी नीयत खराब है। ये दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, ये मंशियात पाकिस्तान में भेजते हैं, नॉन कस्टमर्ड गाड़ियों का इन्होंने धंधा बनाया हुआ है, ये टैक्स बना हुआ है, ये वार लॉर्ड्स है। अफगानिस्तान की जो अवाम है वो इस वक्त वार लॉर्ड्स के दर्गे में है और वो अपना जो इक़्तिदार है या अपनी गिरफ्त है उसको बरकरार रखने के लिए तमाम तरह के जराइम की सरपरस्ती करते हैं, जिसमें दहशतगर्दी भी शामिल है। तो ऐसे नेक्सस को अल्टीमेट हो कहीं भी हो उन्हें ताकत से खत्म करना पड़ता है। अब हमारी फजाई इस्तेमाल हो, हमारी ज़मीनी फौज जाए और उसके नतीजे में हमारा आवाम को भी आज़ादी मिले और सुख का सांस लेना नसीब हो। हम ये कहें ना, सदा सी बात है, हमने कहा कि जी जो हमारे मुल्क के अंदर आके हमारी फोर्सेस पर, हमारे इमलाक पर, हमारे शहर पर हमला कर रहे हैं, टेररिस्ट, फितनतुल खवारिज और ये फितनतुल हिंदुस्तान, वो आपके यहाँ मौजूद है और ये लोकेशन है और ये एड्रेस हमने बता दिए इनको। उन्होंने कहा जी वो दूर दराज के इलाकों में है, हमारी वहाँ कार्रवाई होती है, क्या बकवास है भाई, आपके एरिया में चलें, मानी बात फिर आप नहीं पहुंचे। अब मुझे ये बताएं कि नूर वली महसूद जैसा जो इंतहाई खौफनाक मुजरिम है इस वक्त, हार्ड कोर क्रिमिनल और उनका सरबराह, वो काबल में क्या कर रहा है और उसके पास इंतहाई कीमती गाड़ी जिस पर वो जैमर लगे हुए हैं, पूरा सेट लगा हुआ है, किस तरह से मोबाइल को जैम करने है या रिमोट को जो डिवाइसेज है उनको जैम करना है, यानी कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे इस्तेमाल के साथ दारुल हुकूमत के अंदर वो रह रहा है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ जंग कर रखा था। हमने कोशिश की कि इस मामले को एक हमसाये के तौर पर डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए हल कर दिया जाए, लेकिन जब आप दारुल हुकूमत के अंदर इस तरह के क्रिमिनल्स को रखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की पूरी नेटवर्किंग का वो हेड है और वही बंदे भेजता है और वही सारे मामला करता है, तो उसका मतलब है ये ऐलान जंग है। तो इस ऐलान जंग के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं। आज इन्होंने बॉर्डर पर हमला करके मुझे मौत को दावत दी है। सर नवीद जौहरी साहब, बॉर्डर पर हमला करके मौत को अपनी दावत तो दी है, लेकिन सर अभी 2 दिन पहले DGISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें अफगानिस्तान का खास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर से दरअंदाजी और इसका भी जिक्र किया। आपके ख्याल में जो टाइमिंग है इसको आप किस तरह देखते हैं? ये क्या टेस्टर है पाकिस्तान को आजमाने के लिए ये हमला किया गया? बिल्कुल ये टेस्टर है। इसमें भारत को जो इंतहाई खौफनाक जब उठाना पड़ी, यानी कि आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 7 तारे भारत के तबाह हो गए, ये आज की बात है। यानी कि कोई दिन जाता नहीं है कि दुनिया में उनकी जो जिल्लत है, जो रुसवाई है, उसका तरह ना हो रहा और आलमी रहनुमाओं की तरफ, हमारी तरफ से नहीं, हम तो करते ही हैं, अल्लाह में फख्र है। अच्छा रवीशा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं और इसी बात से जुड़ी, चूंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की भी स्टेटमेंट है और मैं चाहूँगा कि वो भी ज़रा शामिल कर लेते ताकि उस पर फिर आपसे बात करें। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर ब्लास्टाइल फायरिंग है उसकी पुरजोर मजम्मत की है। वज़ीर दाखिला ने अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करार दिया है। कहा पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने फौरी और मौसर जवाब देकर साबित किया कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेस चौकस हैं और अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे असली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और वो भी हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान की तरफ मैली आंख की तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। तो ये स्टेटमेंट सामने आई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की और पुरजोर मजम्मत की है उन्होंने पाकिस्तानी इलाकों पर ब्लास्टाइल फायरिंग की जो अफगानिस्तान की जानिब से की गई है, और इसके साथ साथ उन्होंने अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर जो फायरिंग की है उसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करार दिया है। तो नवीद जौहरी साहब, रिस्पांस आ गया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने रद्दअमल दिया है। तो जवाब तो हमने भरपूर दिया है और जवाब मुसलसल दे रहे हैं और आगे भी अगर कोई ऐसी हरकत की गई तो उसका भी भरपूर जवाब दीजिएगा। एक तो आप इस पर जवाब बात कर लीजिएगा और दूसरा आप अपनी बात जारी रखिए जो इससे पहले आप कर रहे थे।
वज़ीर दाखिला साहब ने जो बात की है वो इस वजह है मैं कि एक सरकारी मौक़िफ़ हमारा रियासती मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने आ गया कि ये भारत के ईमा पर किया गया है, इसमें तो कोई राय नहीं है। तो इंटीरियर मिनिस्टर ने बता दिया है कि हमारे अगले मिशनों के साथ मिलकर इन्होंने ये सारा जो ये जंग रचाई है और उसका जवाब हम पूरी तरह से देंगे। DGISPR ने जो गुफ्तगू की थी कल, उसमें उन्होंने वाशगार साहब से कहा था कि हम जहाँ जहाँ दहशतगर्दी के ठिकाने होंगे जो हमारे मुल्क के अंदर आकर अपनी फैला रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारे शहरों को शहीद कर रहे हैं, हमारे अमलाक तबाह कर रहे हैं, हम उनका पीछा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जहाँ जहाँ वो मौजूद होंगे वहाँ जाकर हम उनको हिट करेंगे और ये हमारा राइट है, इसमें कोई बहस ही नहीं है। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अगर क्या ये प्लान इंडिया ने किया और इंडिया ने उनको कहा कि हमारा अफगान तालिबान को इस वक्त आपने जंग छेड़नी है, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन इधर हमारी जो तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल है। इसमें पूरी तरह से अंदाजा था कि अफगानिस्तान की जानब से किस तरह की हरकत हो सकती है और भारत उनको क्या पट्टी पढ़ा के भेजेगा और भारत की शरारत किस हद होगी। तो इस सारी सूरत हाल में पूरी कौम को एक तो यकजा होना चाहिए और अपने फोर्स के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे उस 4 रोज़ा जंग के अंदर हम खड़े हुए जिसमें हमारी फौज ने भारत को धूल उठाई, तो अफगानिस्तान तो किसी खेत की गोली नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस जंग के नतीजे में वहाँ मौजूद पाकिस्तान मुखालफ अनासर, हाँ वो किसी भी ग्रोह से ताल्लुक से हों, फितरतुल ख्वारिज हों, अफगान तालिबान हों, TTP के लोग हों, दूसरे दहशतगर्द हों, उन सब के साथ बहुत बुरी होने वाली है।